Aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 2nd October 2021. So let's start today's discussion. The first article states that China sends 25 jets into Taiwan air zone. Talking of the background, it is upper than limit, or it is now going beyond the limit that China is continuously sending or celebrating, or any of the reason sending its jets inside the zones of Taiwan. Taiwan said that recently, yesterday, that we saw that it was the China's Independence Day, we can say, and on that day, in total 25 jets actually entered the air zones of Taiwan. ठीक है. Speaking of this event, it actually also stated that how many times till now China has entered Taiwan's boundary. According with this article, or along with this article, we'll also see the relation between Taiwan and China, the relation between Taiwan and India. Okay, so first, telling you the history of Taiwan. Initially, what happened, there was two political parties before this Republic of China was formed. And during a civil war, one of the parties was thrown out from this region and it was sent to an island, and afterward this island is called as Taiwan today. That is actually the history of it. So first we'll see the article, that how many jets and when it is sent, and then we'll see the relation of India and China, why China considers Taiwan as its part, under which policy or under which system. So talking of the article, Taiwan said 25 military planes crossed its defense zone on Friday, the same day that Beijing marks the founding People's Republic of China, its biggest incursion there in month. This month it is the biggest incursion, the biggest invasion that China has did. The show of force of China's National Day near the self ruled democratic island, which Beijing claims as a part of its territory, came in the same week it accused Britain of sending the warship to Taiwan Strait with evil intention. Now, what is it speaking? Basically, this week only, this month only, Britain, it was there that Britain's warship entered this area. ठीक है, and China claimed that it was their evil intention. They intentionally entered the area of this Taiwan, because what does China claim? China claims that Taiwan is its part. Whenever you will see the news, it will be always written Taiwan ROC. Taiwan ROC, that is Taiwan Republic of China. Republic of China means China का ही पार्ट है Taiwan. सो इसी वीक में ब्रिटेन ने भी क्लेम किया था, बट चाइना भी वही काम कर रहा है. जाके तैवान की बात करें, तैवान हैज़ नेवर एक्सेप्टेड दैट थिंग एज वी आर अ पार्ट ऑफ चाइना, बट येस दे हैव मेक देयर रूल्स लिटिल flexible for them, as it has major investment from China when it comes to the economy of Taiwan. So Taiwan's defense minister said it scrambled its aircraft to broadcast warnings on Friday, with 22 Chinese fighters, two nuclear capable bombers, and one anti submarine aircraft entered the island's southwest air defense in the identification zone. Around this part, identification is simply just India का इकोनॉमिक जोन है, दैट अंडर 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का पार्ट होगा. सेम वैसे ही इनका भी सेम हमारा यूएन क्लॉज हमें देता है. अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज, सबका बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, इट इज़ दिया एरिया, देन इकोनॉमिक जोन, देन इंटरनेशनल जोन होता है, राइट. सो ये नोटिस किया गया था कि दे हैव एंटर्ड द टेरिटोरियल जोन ऑफ तैवान. China often sends military aircraft to Taiwan Air Defense Zone to display its displeasure, and last week it मतलब ये वाले इंसिडेंट को छोड़ के लास्ट वीक ये देखा गया था 24 planes into the zone after Taiwan applied to join the major Trans-Pacific Trade Pact. सो एक थ्रेटन के नाम पे भी चाइना ये चीज़ करता है, क्योंकि लास्ट वीक ही तैवान ने एक पैक्ट साइन किया था. द पैक्ट वॉज रिलेटेड टू द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पैक्ट, पैसिफिक ट्रेडिंग के रिलेटेड, एंड टू थ्रेड या फिर टू शो इट्स पावर, चाइना ने यही चीज़ किया. इट एक्चुअली सेंड इट्स 24 jets
in the areas of Taiwan. It has ramped the pressure on Taipei since Taipei is basically the capital of Taiwan. Since 2016 election of President Tsai Ing-wen, who views the island as already independent. जैसे मैंने आपको बताया ताइवान हमेशा से मानता है कि वी आर नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ चाइना, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर एन सॉवरेन स्टेट, ठीक है। बट ये चीज़ है कि चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, ताइवान कम्स अंडर द रिपब्लिक ऑफ चाइना ओनली। सो कंटिन्यूस इंकर्शन देखा गया है चाइना के तरफ से। लास्ट ईयर चाइनीज मिलिट्री जेट्स क्रॉस्ड 380 incursion into Taiwan's defense zone, and number of incursion for the first 9 months in this year has exceeded 500 times. जस्ट इमेजिन कितना इंकर्शन। एंड ये चीज़ अगर सेम इंडिया की तरफ होगा, अगर चाइना की तरफ कोई करेगा तो जस्ट इमेजिन चाइना क्या स्टेप ले सकता है। एंड वही सेम चीज़ वो किसी एक सॉवरेन स्टेट के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। The Chinese People Liberation Army Eastern Theater Command lashed out the voyage, accusing the Britons of acting out of an evil intention to sabotage the peace and stability in Taiwan Strait. ठीक है। US warship regularly conducts freedom of navigation exercise in the water separating Taiwan and mainland, triggering the angry response from Beijing. तो उनका ये मानना है चाइना का कि ये लोग ने जानबूझ के किया है ताकि हम कोई रेपोकॉशंस, इसके कोई एक्शंस लें इसके अगेंस्ट। बट चाइना, यूएस का या ब्रिटेन के वॉरशिप करे तो दे आर कंटिन्यूसली, हमेशा ये नोटिस किया जाता है कि दे आर नेविगेटिंग इंडियन पैसिफिक एरिया में, दे आर ऑलवेज ऑन सर्विलेंस। सो ताइवान का जो चीज़ इन्होंने ये किया है, सेम चीज़ यूएस ने भी किया। बट यूएस का इज़ नॉट फर्स्ट टाइम, यूएस का कंटिन्यूस विजिट या फिर सर्विलेंस हमेशा से इस पर रहता है, ठीक है। तो नाउ हम देखते हैं अबाउट द रिलेशंस ऑफ चाइना एंड इंडिया। चाइना एंड इंडिया का रिलेशन अगर हम देखेंगे, सबसे पहला, चाइना हमेशा से ये चीज़ बोलता है वन चाइना। वन चाइना का मतलब क्या उनका, कि हमारा एक ही चाइना है, ताइवान भी उसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एक सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। सो जो ये सिविल वॉर हुआ था, ये दो पार्टीज़ के बीच में हुआ था, टू वी कैन से डीथ्रो दी दैट मंचाओ डायनेस्टी। उस टाइम पर क्या हुआ कि जो दो सिविल वॉर्स हुए थे, वन ऑफ द सिविल वॉर, एक तरफ से जो लड़ रहे थे उन मतलब जो लीडर थे उनका नाम था कुमिनतांग, ठीक है। कुमिनतांग वॉज अ लीडर फ्रॉम वन ऑफ द पार्टी। और हुआ क्या, ड्यूरिंग दिस सिविल वॉर ही वॉज डिफीटेड एंड देयरफॉर ही वॉज फोर्स्ड कि 1949 में इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके साथ जो लोग थे, उनको फोर्स किया 1949 में टू लीव चाइना एंड दे वर डिपोर्टेड एट दिस आइलैंड, ठीक है। उस टाइम पे आइलैंड का एक्चुअल कुछ नाम दिया नहीं था, तो उनको फोर्स किया था इस आइलैंड पे आने के बाद। एंड देन कुमितांग विद दिस फॉलोअर मेड दिस अ सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन कंट्री बाय द नेम ऑफ ताइवान। जैसे मैंने आपको बोला कि ताइवान कभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया चाइना का पार्ट। बट ये चीज़ देखा जाता है कि ताइवान, अगर हम बात करें, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंट्री है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रिलेशन ताइवान के साथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उस हिसाब से ताइवान ने कभी भी एक्सेप्ट तो नहीं किया, बट हाँ, चाइना को लेके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने ज़रूर रखी है। नाउ देयर इज़ ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड कि क्यों फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, क्योंकि ताइवान का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, वो चाइना है। चाइना का लार्जेस्ट मतलब ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना करता है उधर, ठीक है, जिसकी वजह से ताइवान का इज़ ऑलवेज ऑन दी सरप्लस। अकॉर्डिंग टू 2018 डेटाज अगर हम देखेंगे, चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली 226 मिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ को, ठीक है। सो बट चाइना क्लेम क्या करता है, चाइना हमेशा से वन चाइना के अंदर एक पॉलिसी बोलता है, दैट इज़ वन कंट्री एंड टू सिस्टम। सो वन कंट्री एंड टू सिस्टम, इस वे में बोलते हैं कि ताइवान जो है हमारे अंडर ही फंक्शन कर रहे हैं।
वेरस ताइवान की अगर हम बात करें, ताइवान ने हमेशा से खुद को सॉवरेन माना है, बीइंग अ पार्ट ऑफ, मतलब वो खुद को हमेशा चाइना से रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ताइवान एज अ कंट्री रिप्रेजेंट करता है अलग अलग पार्टीज़ में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैन एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैन एशियन डेवलपमेंट बैंक, सभी जगह पर ताइवान ने कभी भी ताइवान चाइना नहीं किया है, इट इज़ ऑलवेज ताइवान एज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है। वेर एज वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी इज रिकग्निशन ऑफ द बेजिंग दैट देर इज ओनली वन चाइना एंड ताइवान इज अ पार्ट ऑफ इट। नाउ अब थोड़ा सा इंडो ताइवान भी देख लेते हैं, इंडिया का ताइवान के साथ क्या रिलेशंस हैं। सबसे पहले ये चीज़ अगर हम बात करें, इंडिया ने 2010 से कभी भी चीज़ ये वन चाइना सिस्टम नहीं फॉलो किया, या कभी भी ये नहीं बोला कि चाइना, हम चाइना का पार्ट है ताइवान तो उसी हिसाब से रूल करेंगे, नहीं। इंडिया सिंस 2010 हैज़ नेवर एक्सेप्टेड दैट वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी और वन चाइना पॉलिसी, इट हैज़ रिफ्यूज्ड इट। ठीक है। एंड करेंटली अगर हम बात करें, वी हैव अ डिप्लोमेटिक रिलेशन, वी हैव अ कल्चरल रिलेशन, वी हैव एन एजुकेशनल रिलेशन, इन्वेस्टमेंट्स आर डन। देन मेजर इंडिया में जो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ताइवान प्लेज अ मेजर रोल। जापान हुआ, ताइवान हुआ, दे प्ले एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी में, दे आर मेजर रोल इज बीन प्लेइंग, बिकॉज वो इतना मैन्युफैक्चर हमें मिलता है उनके यहाँ से। लास्ट ईयर इसके रिलेटेड न्यूज़ भी था, क्योंकि देन अगेन ताइवान और इंडिया का रिलेशन देखा गया था, क्योंकि एक कंपनी थी इंडिया की जो कि ताइवान बेस्ड थी, विच विड्रॉड फ्रॉम दैट एरिया, सो उस रिलेटेड न्यूज़ आया था। बट करेंटली अगर हम बात करें, इंडिया एंड ताइवान आर हैविंग देयर रिलेशन नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना। ठीक है। एज अ सॉवरेन कंट्री दोनों अपने रिलेशंस फॉलो करते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट रिलीज juveniles if petty offenses pending is over 1 year। ठीक है। अभी आर्टिकल बोलना क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि अगर कुछ केसेस हैं जुवेनाइल बोर्ड के हिसाब से जो कि 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है ना, पेटी केसेस, बहुत ही छोटे छोटे मामूली पे केसेस हैं, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाए। बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें या फिर हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करें, देयर इज़ लैक ऑफ केसेस जो आज भी जो है वो पेंडिंग पड़ा है। सो ये जो छोटे छोटे केसेस को भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो इट विल बी अ बर्डन फॉर अस, एंड देयरफॉर जो पेटी केसेस है उनको आप रिलीज करो इफ पॉसिबल। कोर्ट टर्मिनेट्स विद द इमीडिएट इफेक्ट केसेस व्हेन प्रॉब्स रिमेन इंक्लूसिव। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर आर्टिकल अगर हम देखें, सो आर्टिकल क्या बोल रहा है, टर्मिंग द हाई पेंडेंसी ऑफ द केसेस pertaining to the petty offences committed by juvenile completely unacceptable. Delhi High Court ordered immediate release of those minors whose case inquiry remains inclusive for more than 1 years। कोई ऐसे माइनर्स हैं जिनके केसेस 1 साल से ज़्यादा तक पड़े हुए हैं, और वेरी पेटी केसेस, बहुत ही छोटे छोटे केसेस, तो उनको रिलीज़ कर दिया जाए। The bench of Justice Siddharth Mrudal and Anup Jairam gave the direction after taking into account the submission by Delhi Commission for Protection of Children's Right। Protection of Children's Right की अगर हम बात करें, क्या होता है Protection of Children's Right, कि एक बच्चे का, एक चाइल्ड का हक होता है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द प्रीजुडिस, अगर उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है, गिविंग प्रॉपर एजुकेशन टू देम, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम ट्रैफिकिंग। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ये गलत है कि उनको 1 साल से ज़्यादा यू आर कीपिंग इट फॉर वेटिंग और यू आर नॉट गिविंग अ जजमेंट फॉर देम। ठीक है। जिसमें कि ये नोटिस किया गया अप्रॉक्सीमेटली 1903 इंक्वायरीज थे जुवेनाइल रिलेटिंग टू दिस पेटी केसेस, जो कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बोला अकॉर्डिंग टू जून 30, 2021। ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करता है, जो भी ये माइनर के रिलेटेड केसेस होंगे उनका जो डिसीजन है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट उनके लिए प्रॉपर एक बॉडी बना के दिया गया है। All in the cases alleging the petty offences against the children where an inquiry has been pending and remain inclusive for a longer than one period।
whether the child juvenile has produced before the JJB, that is the Juvenile Justice Board, or all such inquiry shall be terminated. क्योंकि ये चीज़ नोटिस किया गया था कि जब केसेस हुए इनके अगेंस्ट बच्चों के, अगर हम ले लेते कोई 16 साल का लड़का बच्चा है या कोई 15 साल का बच्चा है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश तक नहीं किया, एंड इट इज़ बीन पेंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर. ठीक है. ऑटोमेटिक टर्मिनेशन. ऑटोमेटिक टर्मिनेशन अगर मैं बात करूं, सेक्शन 14 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या बोर्ड का जो सेक्शन 14 है, क्या बोलता है सेक्शन 14, वो देख लेते हैं हम लोग. सेक्शन 14 मेक्स इट कंपल्सरी फॉर द ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द इंक्वायरी अगेंस्ट माइनर्स एलिजिंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑन द पेटी केसेस. ठीक है. जो केसेस ऐसे हैं कि मोर देन 4 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक बहुत छोटे छोटे केसेस हैं, बट उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया है, और मैक्सिमम उसको और 2 मंथ तक आप उसको बढ़ा सकते हो, मतलब 6 मंथ तक, बट उससे ज़्यादा भी कर रहे हो तो यू हैव टू रिलीज देम. ठीक है. However, for any of the inquiry to begin with, authorities have the first determined by the age of subject, कि वो डेलिक्वेसी ऑफ वो जुवेनाइल का एज क्या है. High Court said the process of age determination itself takes a substantial time because its matters remains pending in the courts for a longer period. So, worst still, in the past several months, by the reasons of truncated functionings of the court due to the pandemic situations, juveniles are not being produced before the court either in person or through the video conferencing. पैंडमिक सिचुएशन ने चीज़ें और ख़राब कर दी हैं. जो वर्किंग एक्चुअली होता था वो भी वर्किंग अब बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है. ठीक है. सिंस इट इज़ एन अंडरस्टूड दैट टाइम ऑफ 4 months स्टिपुलेटेड इन द सेक्शन 14 वुड रन आफ्टर द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड इन द JGB, 100 of the matters include petty. The court point that even mere pendency of inquiry is a dignity of a child, and therefore under section 14, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सेक्शन 14 ऑफ JJB, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, क्या बोलता है, तो यू शुड रिमेंबर कि 4 महीने के अंदर अगर पेटी कोर्ट केस के रिलेटेड है तो यू शुड रिलीज देम. ठीक है. तो ये हक हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी दिया गया है. ठीक है. सो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ याद होना चाहिए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, इट इज़ बिटवीन द टॉक्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया एंड श्रीलंका का क्या है. सो ये इट इज़ स्टेटिंग दैट इंडिया श्रीलंका कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. बीच में ये चीज़ नोटिस किया गया था कि इंडिया श्रीलंका के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनाज़ इन्वेस्टमेंट. जैसे वो हम्बन टोटा पोर्ट, आप लोग ने अगर सुना होगा कि चाइना में एक पोर्ट है बाय द नेम ऑफ हम्बन टोटा पोर्ट. हम्बन टोटा पोर्ट में चाइना एंड श्रीलंका ने 99 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट एक डील साइन किया है, जिसमें कि उसका प्रॉपर जो वर्किंग है, वो पोर्ट का जो बनना है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो चाइना करेगा. 99 ईयर्स तक हम्बन टोटा पे कंट्रोल चाइना का रहेगा. आफ्टर बिल्डिंग इट, आफ्टर टेकिंग ऑल दी जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो वो लगाए हैं, इट कैन लीव. तो जैसे हम्बन टोटा पोर्ट है, वैसा ही सिमिलर हुआ क्या था कि इंडिया और जापान ने मिलकर श्रीलंका के साथ एक ट्रीटी, एक डील साइन की थी टू बिल्ड अ ईस्ट कोस्ट टर्मिनल बोल सकते हैं या ईस्ट टर्मिनल कोस्ट, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर हम श्रीलंका की बात करें प्रॉपर, ठीक है, श्रीलंका का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर एक टर्मिनल कोर्ट वो लोग बनाने वाले थे, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ये चीज़ देखा गया कि श्रीलंका ने वो चीज़ कैंसिल कर दिया. श्रीलंका ने बोला कि हम नहीं बनाएंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. बट बाद में वापस देखा गया कि दे साइंड अ ट्रीटी कि ठीक है विल मेक दिस पोर्ट. तो कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस के वजह से ट्रीटी हार्म हुआ था, बट नाउ वी आर अगेन ऑन दी फेस टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग. ठीक है. एंड इसी में हमारे जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापाक्सा, उन्होंने ये बोला कि इंडिया एंड चाइना आर लाइक ब्रदर सिस्टर्स. हम लोग का रिलेशन अभी से नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम सेंचुरीज. जब हमारा बुद्धिज़्म आया था, जब रामा आए थे, तब से हमारा रिलेशन है. तो इतना जल्दी ये रिलेशंस ख़राब नहीं हो सकता. और इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया गया था, इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुआ क्या था, इंडिया से जो है हमारे मिनिस्टर गए थे टू विज़िट कोलंबो. ठीक है. एंड ड्यूरिंग दैट विज़िट उन्होंने ये चीज़
बोला, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी कि कौन गए थे, एंड देन we'll see the article. So after several months of the strains in Indo-Sri Lanka and COVID lockdown, the visit of Indian Foreign Secretary Harsh Shringala to Colombo on Saturday is being seen as an effort to reset the ties. ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच का रिलेशन ठीक करने के लिए। वहीं पे जो श्रीलंका हाई कमिश्नर थे मिलिंद मोरंगोडा, उन्होंने बोला कि ये जो विज़िट है ये कहीं ना कहीं हमारे बायलैटरल रिलेशन को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, या इसको हम देख सकते हैं कि इंडिया और श्रीलंका का भी और भी बायलैटरल टाइज साइन होगा, ठीक है। सो इंटरव्यू के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछा गया है या क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू दिया गया है, विल गो अकॉर्डिंग टू इट। सबसे पहली चीज़, इन द इंटीग्रेटेड कंट्री स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया दैट यू प्रेजेंटेड टू योर गवर्नमेंट बिफोर केम टू एन इंडिया, यू स्पोक अबाउट द ट्रस्ट डेफिसिट growing trust deficit between India and Sri Lanka. What is the primary cause of this trust deficit? तो उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया गया था कि हमारा रिलेशन जो है वो आज के टाइम का नहीं है। यू कैन कंसिडर बुद्धा और यू कैन कंसिडर रामायण की बात अगर हम करें तो हमें पता है कि जो हमारे लॉर्ड राम थे वो गए थे श्रीलंका, ताकि रावण का जो एक्चुअल एरिया था वो श्रीलंका का था, तो वहाँ से सीता जी को लाने के लिए गए थे। दूसरी बात, बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर श्रीलंका भी हमारा ही पार्ट था, उस हमारे ही कंटेक्स्ट में था। सो ये चीज़ नोटिस किया गया था कि हमारे बहुत सारे इंडियन किंग्स ने बुद्धिज़्म को एनकरेज करने के लिए श्रीलंका में पेट्रोनाइज़ किया था। श्रीलंका में भी मेजर आज के टाइम पर बात करें तो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस होता है। सो कहीं ना कहीं हमारा रिलीजन आज का नहीं है, बट इट इज़ फ्रॉम द टाइम ऑफ बुद्धा एंड रामा। तो ये चीज़ नहीं बोल सकते। हाँ, इन कंटेस्ट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट वी कैन से कि टाइम टू टाइम ये चीज़ हो सकता है। जस्ट लाइक 1918 की अगर हम बात करें, 1918 में एक परसेप्शन था कि श्रीलंका वॉज क्लोज टू यूएस, और अभी वैसा ही परसेप्शन कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशन अच्छा है। तो ये कुछ परसेप्शंस बनाए जाते हैं, बट वी कांट से कि इट इज़ ऑलवेज ट्रू। Our PM Mahinda Rajapaksa say that India and China are like brother sisters, and therefore there can be misunderstanding. ऑब्वियसली हो सकता है कि टेंशन इश्यूज़ की वजह से, कोविड की वजह से, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रॉन्ग परसेप्शंस बन गए थे लोगों के, बट ऐसी चीज़ें नहीं हैं। Second question, do you think that decision to scrap out the India-Japan MOU to sign the East Coast Terminal, जैसे मैंने आपको बताया, has damaged the India रिलेशन परसेप्चुअली? तो उसमें रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, हमारा रिलेशन ऐसे चीज़ों पर ख़राब नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे कब ख़राब होता कि अगर हम डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस करते, इफ़ वी वुड प्रैक्टिस डिक्टेटरशिप देन वी कैन से कि दे वुड अफेक्ट द इशू, बट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, वी प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, सो दिस इशूज कांट हार्म अस डायरेक्टली, ठीक है। सो उनका आंसर था, आई डोंट थिंक इट हैज़ damage. I mean, the basic reality is that we are democracy and we are South Asian democracy. If it was dictatorship, the East Coast Terminal would have given a issue as an order. But being a democratic country, ये चीज़ नहीं है, and therefore कहीं ना कहीं बाद में भी ये चीज़ साइन हुई। And the government offered another terminal, West Coast Terminal, for which the agreement was signed yesterday by Adani Groups. तो उसको छोड़ के रिसेंटली भी चाइना के वेस्ट कोस्ट के डेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप के साथ डील हुआ है, जो अडानी ग्रुप उनको पूरा पोर्ट कंस्ट्रक्शन करके देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Srilanka's track record has not been good apart from the ECT, that is the East Coast Terminal. The government has backtrated on the Trichalum oil tank farm. There has a sense that China is hesitating to, Sri Lanka is hesitating to go ahead with the promises to India. तो ये क्वेश्चन था कि आर यू हेजिटेटिंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, या फिर हमारे रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हुए कभी। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। आई मीन द अडानी पोर्ट इज़ वन ऑफ द वेयर द मूवमेंट ऑफ
प्रेसिडेंट गोटाबाया अभी जो श्रीलंका है उसकी श्रीलंका की फंक्शन दो भाई कर रहे हैं, ठीक है। एक हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ के और एक है पीएम। पीएम का नाम है महिंद्र राजपक्षा और जो प्रेसिडेंट हैं एक दूसरे भाई उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षा, ठीक है। तो इस पर गोटाबाया राजपक्षा ने ये डिसीजन दिया कि जो वेस्ट कोस्ट टर्मिनल है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ नहीं है कि हम रिलेशन अच्छा नहीं बनाना चाहते या इंडिया के साथ जो हमने प्रॉमिस किया वो हम नहीं करना चाहेंगे। I hope that we can build such a strategy projects in ports, oil, gas, renewable energy, and with common grid digital area that we are looking seriously with India's Aadhaar project. ठीक है। सो ये क्वेश्चन को उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस्ड वेरी रिसेंटली दैट इंडिया विल रीस्टार्ट इट्स एक्सपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स दैट हैज़ बीन स्टॉप्ड आफ्टर अ सेकेंड वेव। हमने ये कुछ टाइम पहले आर्टिकल में पढ़ा था कि ये इंडिया जो है बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को लार्जेस्ट वैक्सीन दे रहे हैं। अभी भी बीच में बंद किया गया था, वापस उन्होंने अनाउंस किया कि वी विल गिव देम वैक्सीन जो उनको चाहिए। वैक्सीन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी इंडिया ने उनको प्रोवाइड किया था। हाँ, तो वैक्सीन दैट हैव बीन सडनली स्टॉप्ड आफ्टर द सेकेंड वेव ईयर, इज श्रीलंका होपफुल ऑफ गेटिंग सम मोर वैक्सीन्स। तो उन्होंने बोला वी विल ऑब्वियसली अप्रिशिएट इट द वैक्सीन अवेलेबिलिटी। अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज गोइंग क्वाइट स्मूथली। वी वुड लुक इन फॉरवर्ड दैट इंडिया डज द एक्सपोर्टिंग बट वी हैव बीन एबल टू थिंक दैट आई मैनेज द वैक्सीन सिचुएशंस हियर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस आर बीन सीइंग टू बी अ गुड, स्मूथली जा रहे हैं। लेट्स सी अभी ईस्ट कोस्ट टर्मिनल उसके साथ वेस्ट कोस्ट टर्मिनल, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आगे भी शायद चाइना इन्फ्लुएंस करे या ना करे, लेट्स सी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू के दौरान ये चीज़ देखा गया था। अगर आप हेडिंग पढ़ोगे, अ पीपल हु बिकेम इंडियन ओवरनाइट। इंडियन ओवरनाइट के बारे में अगर मैं बोलूँ, आप अगर यहाँ पर मैप भी देखोगे इट विल शो यू द प्लेस ऑफ लेह लद्दाख, हमारा LOC वाला रीजन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है। तो ये चीज़ अगर इसकी बैकग्राउंड बताऊँ हुआ क्या है, ये जो बोला गया है पीपल बिकम इंडियन ओवरनाइट, ये कैसे हो सकता है? रात में, एक ही रात में कैसे कोई इंडियन बन सकता है, जबकि ये चीज़ एक्चुअली इंडिया में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 1971 में हमारा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ। वॉर इज़ बेसिकली हमने कैप्चर किया था, जो ये लोग ने हमारा एरिया लिया है, ठीक है, LOC के पास वाला, POK के पास वाला, उसके 4 ऐसे गांव इंडिया ने अपने अंदर कैप्चर कर लिया। बिकॉज ऑफ कैप्चरिंग, ये जो हुआ था 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में हुआ था। ड्यूरिंग दिस कैप्चरिंग ये लोग ने किया क्या, 4 विलेजेस तो कैप्चर कर लिए, बट हुआ क्या कि ये 4 विलेजेस के कुछ लोग जो थे वो उस तरफ रह गए और कुछ लोग इस तरफ रह गए। जैसे कि एक इंसान यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है, इनका ये था कि ये रात में अपने दूसरे, मतलब इनके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थे, तो वन ऑफ द गांव थांग के पास ये रात में वहीं पे रुक गए और जब सुबह उठे तो पाकिस्तानी से ही बिकेम एन इंडियन, एंड देयरफॉर ये चीज़ बोला जाता है पीपल हु कैन बिकेम इंडियन ओवरनाइट, ठीक है। सो सबसे पहले होल्डिंग अ पेयर ऑफ स्मॉल binocular with a wrinkled hand, 75-year-old Ahmad Shah has been watching tourists। इनका जब ये चीज़ इनके साथ 25 साल पहले हुआ था, जब इनके साथ हुआ उसके बाद से इन जो टूरिस्ट आते हैं, जो एरिया है जहाँ से कंट्रोल्ड है, वहाँ से अगर आप बाइनिकुलर से देखोगे तो आपके पाकिस्तान की एरिया दिखेगी जो कंट्रोल्ड एरिया है। सो Ahmad Shah has been watching tourists make a beeline of his village for more than a month now, perched on a boulders of the fringe of Thang. Thang is a village जो इंडिया के कंट्रोल में है अभी। One of the northmost village situated about 230 kilometers from Leh. Shah has been offering binoculars to the tourists who are curious to see Parun. Parun अगर हम बात करें, ये चीज़ देखा गया था। पारून और थांग देवर ट्विन विलेजेस, एक साथ ही था। ड्यूरिंग दी दिसंबर में जो कैप्चरिंग हुआ था तो पारून पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह गया और थांग इस तरफ आ गया। सो पारून पाकिस्तान विलेज अक्रॉस LOC, सम ऑफर हिम मनी एंड वेरी फ्यू चैट्स अबाउट हिम द ऑब्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ पारून, बट ही हैज़ अ टूथलेस स्माइल ऑलवेज, ठीक है। सो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई इसके बारे में हुआ क्या। पहले चीज़ अगर हम देखेंगे तो थांग जो है
ये पारून के साथ उनके साथ हुआ क्या था कि 50 साल पहले, जब ही वॉज 25 ईयर्स अगो, उस टाइम पर 50 साल पहले उनको वहाँ से अलग कर दिया गया बिकॉज ऑफ द रीड्रॉन ऑफ 1971 में जो किया गया था। उस टाइम पर उनकी बहन, उनके भाई जो हैं वो पारून में चले गए और ये अकेले थांग के एरिया में रुक गए जहाँ पे उनका एंसेस्ट्रल होम था। तो उन्होंने स्टोरी में बताया कि आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड देन एंड डिड नॉट एक्सपेक्ट द वॉर टू सेपरेट मी फ्रॉम माई फैमिली। आई हैव बीन वॉचिंग देम वर्क इन द फील्ड यूजिंग दिस बाइनेकुलर। इन द recent years I have been able to speak to him on an internet call, क्योंकि आई थिंक से 2012 में उधर प्रॉपर इंटरनेट या फिर वो नेटवर्क कनेक्शन बनाया, उससे पहले तक वो भी नहीं था। सो फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया की अगर हम बात करें, बिटवीन द मिडनाइट ऑफ 14 दिसंबर टू 16 दिसंबर द इंडियन आर्मी कैप्चर्ड 4 विलेजेस अक्रॉस द एरिया ऑफ शोक रिवर। शोक ये नाम क्यों दिया गया है? शोक इसके लिए इसको नाम दिया गया है कि ये जब भी ये रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है एंड बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग बहुत सारे एरिया ख़राब हो जाता है। सो शोक इज़ अ नेम फॉर द डेथ ऑफ द रिवर बोल सकते हैं। जैसे कि बिहार में इसको सौरो ऑफ रिवर बोला जाता है, क्योंकि ये जब भी बिहार में फ्लडिंग लाता है, इट डैमेजेस अ लार्ज पार्ट ऑफ बिहार। जो हमारा केदारनाथ में जो इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ शोक रिवर। सो यस, शोक रिवर, हाँ, सो शोक रिवर के कुछ पास में ही पार्ट वाज गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया में। एंड ओवर नाइट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1200 villages of Turtuk, थांग, त्यांग्सकी एंड चालुका व कट ऑफ फ्रॉम बालिस्तान। तो ऐसे 4 विलेजेस थे जो कि वहाँ से कट ऑफ किए गए थे, मतलब इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। दैट वाज तुर्तुक, थांग, थांग के बाद है नेक्स्ट त्यांग्सकी और नेक्स्ट है चालुकास। ये 4 विलेजेस बालिस्तान से कट ऑफ करके इंडिया ने अपने कंट्रोल में ला लिया था। एंड द रीजन वॉज पार्ट ऑफ द बालिस्तान, जो कि अभी करेंटली हमारे लेह का पार्ट है। थांग एंड पारू वर द ट्विन विलेजेस होल्डिंग प्रॉपर्टीज एंड होम्स इन दैट एरिया। ये जो शाह अहमद शाह, उनके पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो पारू में रहते थे, और उस रात को क्या हुआ कि ये वन ऑफ दी एंसेस्ट्रल घर उनका थांग में था, वहाँ पे ही रुक गए थे। उन्होंने बोला, आई स्लेप्ट एट पाकिस्तान एंड woke up as an Indian in the morning. I could not do anything, he says. He was resigned of his faith. I do not feel like going there, but it will be good if both countries talk, allow miles to meet at least. Surrounded by lofty arid Himalaya mountain, Turtuk, the biggest of the 4 villages on the bank of Shok, offer a breathtaking view of the एप्रिकॉट्स। और यहाँ की जो चारों विलेजेस हैं, इस चारों विलेजेस की अगर हम इकोनॉमी देखें तो ये 2 चीज़ों पर चलती है, एक एप्रिकॉट और दूसरा जो है एप्रिकॉट के साथ दैट इज़ वॉलनट। एप्रिकॉट और वॉलनट का प्रोडक्शन इस चारों में बहुत, ये चारों एरिया में बहुत है, तो मेजर जो इनकी इकोनॉमी है वो इसी पर चलती है। और कहीं ना कहीं आगे अगर हम देखेंगे, ये लोग ने कोशिश भी की कि इंडियन आर्मी से बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ बताए हैं इसमें। इन्होंने कोशिश की, एटलीस्ट डिमांड किया कि आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हो तो एक प्रॉपर एरिया बना दो जहाँ से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को एटलीस्ट देख पाए, मिल पाए या गेट टुगेदर हो पाए। तो इंडियन आर्मी ने भी अभी तक ये चीज़ को अलाउ नहीं की है, वेरस पाकिस्तान आर्मी ने भी ये बोला कि हमें करने को मना किया गया है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ हैं इस जहाँ पर ये चीज़ नोटिस किया गया था कि ये लोग की कल्चरल प्रॉपर्टी, ये लोग की जो प्रॉपर्टी है वो वैसी छोड़ दी गई है। बहुत सारे बूढ़े लोग, ऑब्वियसली कितने साल हो गए हैं, तो बूढ़े लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो गांव के लोगों ने कैसे करके संभाली है। पर एक चीज़, अच्छी चीज़ नोटिस की गई थी कि अलग होने के बाद भी उन्होंने अपना कल्चरल प्रैक्टिस हमेशा से रखा। Families distressed by the separation, emotional scar, last 5 decades have seen Dalit population holding its cultural and tradition. A population that practiced Tibetan Buddhism till 14th century, जिन्होंने फिर सूफीज़म एक्सेप्ट किया। उससे पहले बुद्धिज़्म होता था, बट बिकॉज ऑफ वन किंग जो यहाँ पर आए थे से हमारे पाकिस्तान वाले एरिया में एंटर किए थे, उन्होंने इनको सूफिस्ट इस्लाम एक्सेप्ट करवाया। और उसके बाद से
हज़रत शाह जो किंग थे उन ईरान से जो आए थे, उन्होंने जब इनको दिया तो उन्होंने सूफिज़्म एक्सेप्ट किया। आज भी वो लोग इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ दूसरा दैट वाज ज़ोरास्ट्रिज्म प्रैक्टिस करना, वो भी आज प्रैक्टिस किया जा रहा है। ज़ोरास्ट्रिज्म एक होता है एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, अलग होने के बाद भी एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपर अपनी ट्रेडिशन और कल्चर को हमेशा से बनाकर रखा। कुछ ना कुछ लोगों ने ऑब्वियसली छोड़ दिया ये पार्ट और उन्होंने अलग अलग चीज़ों में पार्ट लेना स्टार्ट किया, जैसे कि जो भी इंडिया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस सब में पार्ट लिया, इतने कल्चर को नहीं निभाने, बट येस बहुत लोगों ने इसको कंटिन्यूली रखा। एंड आज भी के टाइम अगर हम बात करें, बहुत लोग ऐसे हैं जो विजिटर्स बन के आते हैं, दे आर क्यूरियस टू नो अबाउट द कल्चर, एंड वो लोग बताते भी हैं कि उनका एथिक्स क्या है, एंड दे रियली वांट कि एटलीस्ट कोई ऐसा एक चीज़, एक ट्रीटी हो या कुछ ऐसा डील हो कि वो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स से मिल पाए। कितने लोग बूढ़े ऐसे वो लोग अपने लाइफ मतलब उन लोग ने अपनी ज़िंदगी जी ली, मरते दम तक वो अपने फैमिली मेम्बर्स से नहीं मिल पाए। तो दैट इज़ अ सैड स्टोरी ऑफ दी पीओके एरिया, और जो एरियाज़ इंडिया ने कंट्रोल कर लिए हैं। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।